साइंस 2 लेसन 6 एनिमल क्लासिफिकेशन। इस लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज दिया है उसी क्वेश्चंस का आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं इन दिस वीडियो अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम एंड ऑल्सो द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई मी। ए, आई एम डिप्लोब्लास्टिक एंड अ सिलामेट। विच फाइलम डू आई बिलोंग टू? तो आंसर क्या है? आई एम फ्रॉम फाइलम निडेरिया और सिलेंटरेटा। नेक्स्ट वन, my body is radially symmetrical. Water vascular system is present in my body. I am referred as fish, though I am not. What is my name? Starfish. तो आंसर क्या है? Starfish from phylum Echinodermata. Next one is C. I live in your small intestine. Pseudocolum is present in my thread-like body. In which phylum you will include me? तो आंसर क्या है? I am Ascaris from phylum Aschelminthes, not Aschelminthes. D. Though I am multicellular, there are no tissues in my body. What is the name of my phylum? The answer is I am sponge from phylum Porifera. Question number 2. Write the characters of each of the following animals with the help of classification chart. First one is what? Bath, a sponge. आंसर क्या है इसका? क्लासिफिकेशन क्या है बाथ स्पॉन्ज का? किंगडम एनिमेलिया, सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा, फाइलम पॉरीफेरा. Now characters of bath sponge. They have cellular grade organization, asymmetrical body and body cavity is a coelomate. Second one, B. They bear numerous spores on their body. Those spores are called as ostia and oscula. Third one, C. These are aquatic animals. Fourth point, these animals are always attached to substratum, hence do not show locomotion. Fifth point, asexually they reproduce by budding. Sixth point, they have good ability of regeneration. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बाथ स्पॉन्ज का वो पेज नंबर 67 में मिल जाएगा और जो फर्स्ट पॉइंट है वो चार्ट दिया है पेज नंबर 66 में नीचे, वो चार्ट से ये मिल जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन इज ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर का क्लासिफिकेशन क्या है? किंगडम एनिमेलिया, सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा. अभी ग्रास हॉपर का कैरेक्टर्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट, दे हैव ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, bilateral symmetrical body and eucoelomate body cavity. They have jointed appendages. Body of these animals are triploblastic and segmented. Chitinous exoskeleton is present around their body. These animals are unisexual. तो फर्स्ट पॉइंट है वो चार्ट पेज नंबर 66 से मिल जाएगा और बाकी सब कैरेक्टर्स है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 69 में मिल जाएगा. नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज व्हाट? रोहू. क्लासिफिकेशन किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास पाइसीज. कैरेक्टर्स ऑफ रोहू क्या है? दे हैव ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बाइलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी, eucoelomate body cavity and triploblastic body. Second point, presence of scale on body. Third point, respiration through gills. Fourth point, फाउंड इन फ्रेश वाटर. तो ये सब कैरेक्टर्स रोहू का वो पेज नंबर 73 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 73 में मिलेगा और जो फर्स्ट पॉइंट है वो पेज नंबर 66 में जो चार्ट दिया है वहाँ से मिलेगा. नेक्स्ट वन, फोर्थ, पेंगुइन. क्लासिफिकेशन ऑफ पेंगुइन क्या है? किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एवीज. Characteristics of penguin is what? First point, they have organ system grade organization, bilateral symmetrical and triploblastic body, and body cavity is eucoelomate body cavity. Second point, exoskeleton is in the form of feathers. Third point, they are warm-blooded animals. Fourth point, jaws are modified into beaks. Fifth point, their forelimbs are modified into wings. Sixth point, they are flightless bird inhabitant of snow-clad regions. जो कैरेक्टर्स है पेंगुइन का वो पेज नंबर 74 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 74 में मिल जाएगा और जो फर्स्ट पॉइंट जो कैरेक्टर का है इट इज़ देयर ऑन द चार्ट ऑफ पेज नंबर 66. ये लास्ट पॉइंट जो है इट इज़ नॉट देयर इन द टेक्स्ट बुक. यू कैन राइट, अगर मांगता है तो लिख सकता है, नहीं तो अवॉइड भी कर सकता है. नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, फ्रॉग. Classification, kingdom Animalia, phylum Chordata, class Amphibia.
Characters of a frog is what? They have organ system grade organization, bilateral symmetrical and triploblastic body, eucoelomate body cavity. Second point, can live on land as well as water. Third point, exoskeleton is absent. Fourth point, external ear is absent but tympanum is present. फिफ्थ पॉइंट, टू पेयर्स ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट. ये जो कैरेक्टर्स है फ्रॉक का, यू विल गेट इट इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 73. और फर्स्ट पॉइंट चार्ट पेज नंबर 66 का जो चार्ट नीचे दिया है, फ्रॉम देयर यू विल गेट इट. सिक्स्थ लिजार्ड है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है? किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास रेप्टिलिया. कैरेक्टर ऑफ लिजार्ड इज व्हाट? First point, organ system grade organization, bilateral symmetrical and triploblastic body, eucoelomate body cavity. Second point, lizard is a cold-blooded reptile. Third point, they creep on land as their body cannot be lifted up. Fourth point, the skin is dry and scaly. Fifth point, external ear is absent. Sixth point, neck is present between head and trunk. और लास्ट पॉइंट, डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ क्लॉज. ये सब कैरेक्टर्स पेज नंबर 74 में मिल जाएगा और फर्स्ट वाला पेज नंबर 66 का चार्ट से मिल जाएगा. नेक्स्ट सेवेंथ वन, एलिफेंट. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेंट क्या है? किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया. कैरेक्टर्स ऑफ एलिफेंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी and body cavity is eucoelomate. Second point, mammary glands are present. Third point, they are warm blooded animals. Fourth point, body is divided into head, neck, trunk and tail. ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो पेज नंबर 66 के चार्ट से मिल जाएगा और बाकी सब जो पॉइंट्स है वो पेज नंबर 74, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 74 से मिल जाएगा. नेक्स्ट एट्थ वन, जेलीफिश. क्लासिफिकेशन, किंगडम एनिमेलिया, सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा, फाइलम नाइडेरिया और सिलेंटोरेटा. कैरेक्टर क्या है जेलीफिश का? दे हैव cell grade organization, radially symmetrical and diploblastic body and a coelomate body cavity. Its body is umbrella shaped, hence it is called medusa. Third point, nidoblast bearing tentacles are present which is used for catching prey. Fourth point, nidoblast secrete a toxin which paralyzes the prey. ये सब जो पॉइंट्स है कैरेक्टर का वो पेज नंबर 67 में मिल जाएगा और फर्स्ट पॉइंट जो है वो पेज नंबर 66 के चार्ट से मिल जाएगा. थर्ड क्वेश्चन, राइट इन ब्रीफ अबाउट प्रोग्रेसिव चेंजेस इन एनिमल क्लासिफिकेशन. आंसर का फर्स्ट पॉइंट है, time to time different scientists have tried to classify the animals. Second point, Greek philosopher Aristotle was the first to perform animal classification. Third point, Aristotle classified the animals according to the criteria like body size, habits and habitats. Fourth point, further, as per the new developments in science, references were changed and thereby the criteria of animal classification. Fifth point, classification proposed by Aristotle is known as artificial method. Sixth point, artificial method of classification was followed by Theophrastus, Pliny, John Ray, Linnaeus, etc. Seventh point, later on natural system of classification was followed. Eighth point, natural system of classification was based on various criteria like body organization, types of cells, chromosomes, biochemical properties, etc. Ninth point, system of classification based on evolution was also brought into practice. It was used by Dobzhansky and Meyer. Last point, 10th one, recently Carl Woese has also proposed the animal classification. ये जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 62 में मिल जाएगा. Fourth question, what is the exact difference between grades of organization and symmetry? Explain with examples. Answer, grades of organization. पहले grades of organization के बारे में explain करते, बाद में symmetry के बारे में. तो grades of organization का first point क्या है? In unicellular animals, all functions are performed by same cell as the body is made up of single cell. Hence, it is known as protoplasmic grade organization. For example, amoeba and paramecium.
Second point, if tissues are not formed in multicellular animals, then their body organization is called cellular grade organization. Example, phylum Porifera. All the animals from phylum Porifera shows what? Cellular grade organization. Third point, in multicellular animals, when cells come together to form tissues with the help of which all the body functions are performed, such animal shows cell tissue grade organization. Example, animals from phylum Cnidaria. Fourth point, when tissues are organized to form some organs, then it is known as tissue organ grade organization. For example, flatworms. Fifth point, if different organs are joined together to form organ system that performs specific function, then it is called organ system grade organization. For example, crab, frog, humans, etc. नेक्स्ट सिमेट्री के बारे में लिखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, इफ बॉडी ऑफ एनी एनिमल इज कट थ्रू इमेजिनरी एक्सिस ऑफ बॉडी, इट मे और मे नॉट प्रोड्यूस टू इक्वल हाल्व्स. सेकेंड पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रॉपर्टी there are three types of animal bodies. Third point, in case of asymmetrical body, there is no such imaginary axis of the body through which we can get two equal halves. Example, amoeba, paramecium, some sponges. Fourth point, in case of radial symmetry body, if imaginary cut passes through central axis but any plane of the body, it gives two equal halves. Example, starfish. Last point, in bilateral symmetry body, there is only one such imaginary axis of body through which we can get two equal halves. Example, insects, fishes, frogs, birds, humans, etc. ये जो आंसर है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सिमेट्री वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 64 एंड 65 में मिल जाएगा. फिफ्थ क्वेश्चन, आंसर इन ब्रीफ. ए, गिव साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ शार्क अप टू क्लास. तो इसका आंसर क्या रहेगा? किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास पाइसीज. सेकेंड क्वेश्चन बी, राइट 4 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्माटा. आंसर, 4 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्माटा आर. First point, calcareous spines are present on the body of these animals, hence they are called as echinoderms. Second point, their body is triploblastic, eucoelomate. Third point, in larval stage they show bilateral symmetry, but it is radially symmetrical in adult. Fourth point, they perform locomotion with the help of tube feet. Tube feet are also useful for capturing prey. ये जो points हैं वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 71 में मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश सी, थर्ड वाला दैट इज सी, distinguish between butterfly and bat with the help of 4 distinguishing properties. Answer, butterfly का first point, it belongs to phylum Arthropoda. Bat का first point, it belongs to phylum Chordata. Second point, butterfly is diurnal insect. Second point, bat is nocturnal mammal. Third point, butterfly has 2 pairs of wings for flying. और यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या आएगा? बैट हैज़ पैटिजियम दैट फंक्शन हैज़ विंग्स. फोर्थ पॉइंट ऑफ बटरफ्लाई इज व्हाट? चिटिनस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट. बैट का क्या रहेगा? एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर्स. फोर्थ वन डी, टू विच फाइलम डज कॉकरोच बिलोंग? Justify your answer with scientific reason. तो फर्स्ट क्वेश्चन, टू विच फाइलम डज कॉकरोच बिलोंग, इसका आंसर क्या है? कॉकरोच बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा. नेक्स्ट उन लोग ने क्या पूछा? जस्टिफाई योर आंसर विथ साइंटिफिक रीज़न, मतलब ये बताना कि कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. तो उसका आंसर है सेकेंड पॉइंट, कॉकरोच हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस. थर्ड पॉइंट, चिटिनस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड देयर बॉडी. फोर्थ पॉइंट, they are triploblastic eucoelomate, bilaterally symmetrical and segmented. Fifth point, hence cockroach belongs to the phylum Arthropoda. ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 69 में मिल जाएगा और ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, give scientific reasons. First one, that is A, though tortoise lives on land as well as in water, it cannot be included in class Amphibia. Answer, first point, on land tortoise respires with the help of lungs. Second point, when in water
It puts out its nasal opening out of the water and breathes air. So whether in land or water, tortoise respires with the help of lungs. Third point, whereas amphibians when in water respires through skin, and when on land it respires with the help of lungs. Fourth point, neck is absent in amphibians, but in tortoise neck is present between the head and trunk. Fifth point, thus though tortoise lives on land as well as in water, it cannot be included in class amphibia. Second one, that is B, our body irritates if it comes in contact with jellyfish. तो इसका आंसर क्या है? First point, the mouth of jellyfish is surrounded by tentacles. Second point, tentacles are useful for catching prey as well as it is used for defense also. Third point, when our body comes in contact with the tentacles of jellyfish, Nidoblast injects a toxin in our body and thus our body irritates if it comes in contact with jellyfish. ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 67 में मिल जाएगा और ये गिव रीज़न सितंबर 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था 2 मार्क्स के लिए. थर्ड गिव रीज़न सी, all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. Answer, first point, all chordates possesses notochord in some period of their development. Second point, all vertebrates also have notochord during embryonic life, which is later replaced by vertebral column. Third point, some chordates like urochordates and cephalochordata do not possess vertebral column. Fourth point, due to the absence of notochord in adult vertebrates, it is said that all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. Fourth give reason, that is D, Balanoglossus is connecting link between non-chordates and chordates. Answer, first point, Balanoglossus shows certain characteristics of both chordates and non-chordates. Second point, absence of vertebral column or a spinal cord and are worm-like are the non-chordate-like characteristics seen in Balanoglossus. Third point, presence of notochord, pharyngeal gill slits are some chordate-like characters seen in Balanoglossus. Fourth point, hence Balanoglossus is considered as connecting link between non-chordates and chordates. ये जो क्वेश्चन है नवंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. फिफ्थ गिव रीजन, दैट इज ई, बॉडी टेम्परेचर ऑफ रेप्टाइल्स इज नॉट कांस्टेंट. तो आंसर का फर्स्ट पॉइंट क्या है? रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मस, दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. Second point, unlike homeothermous animals like birds and mammals, they are unable to regulate the body temperature internally. Third point, their body temperature changes as per the environmental temperatures. Fourth point, therefore body temperature of reptiles is not constant. Question number 7. Answer the following questions by choosing the correct option. तो फर्स्ट वाला ए क्या है? विच स्पेशल सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस, दैट इज पॉरीफेरा. फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है? कॉलर सेल्स. सेकेंड पॉइंट क्या दिया है? नाइडोब्लास्ट. थर्ड पॉइंट क्या दिया है? जर्म सेल्स. और फोर्थ क्या दिया है? एक्टोडर्मल. तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कॉलर सेल्स. तो आंसर फर्स्ट वन है कॉलर सेल्स. द कॉलर सेल्स बीट देयर फ्लैजुला बैक एंड फोर्थ to force water through the sponge. The water brings nutrients and oxygen. They pick up the tiny bits of food brought in with water. Second question, that is B. Which of the following animals' body shows bilateral symmetry? फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? स्टारफिश. सेकंड जेलीफिश. थर्ड अर्थवॉर्म. फोर्थ स्पॉन्ज. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अर्थवॉर्म, दैट इज अ थर्ड वन. तो आंसर क्या है? थर्ड वन, अर्थवॉर्म. बाय इन अर्थवॉर्म देर इज ओनली वन इमेजिनरी एक्सिस ऑफ बॉडी which divides the body into two equal halves. Hence earthworm's body shows bilateral symmetry और बाकी सब जो है वो bilateral symmetry नहीं बताता. Next one, C. Which of the following animal regenerate its broken body part? ऑप्शन 1 क्या दिया है? कॉकरोच. सेकेंड ऑप्शन दिया है फ्रॉग. थर्ड ऑप्शन दिया है स्पैरो. फोर्थ ऑप्शन दिया है स्टारफिश. तो आंसर क्या है?
फोर्थ वन दैट इज स्टारफिश, तो आंसर है फोर्थ ऑप्शन दैट इज स्टारफिश. वाई? इकाइनोडर्माटा शोज पावर ऑफ रीजनरेशन, देयरफॉर ओनली स्टारफिश कैन रीजनरेट इट्स ब्रोकन बॉडी पार्ट. तो स्टारफिश जो है वो इकाइनोडर्माटा फाइलम में बिलोंग करता है, इसके लिए स्टारफिश खाली रीजनरेट कर पाता है अपना ब्रोकन बॉडी पार्ट, रेस्ट ऑफ द एनिमल्स कैन नॉट डू दैट. फोर्थ वन डी, body is in bat, not body, bat is included in which class? First option amphibia, second one reptilia, third one aves, fourth one is what? Mammalia. तो आंसर क्या है? फोर्थ, दैट इज मैमेलिया. अभी बैट क्लास मैमेलिया में क्यों इंक्लूड किया गया है? क्योंकि बैट गिव्स बर्थ टू यंग वंस एंड दे ऑल्सो पोजेसेस मेमोरी ग्लैंड्स. एव्स, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया, बाकी का तीनों जो है they do not show such features, therefore bat is included in mammalia. Next question number 8, complete the following chart. चार्ट में 3 कॉलम दिया है, बॉडी कैविटी, जर्म लेयर और फाइलम. जहाँ जहाँ रेड पेन में लिखा है दैट यू हैव टू फिल इट. अब ये सब ब्लैंक था जहाँ पे फिल करना था. तो बॉडी कैविटी एब्सेंट है और फाइलम पॉरीफेरा दिया है, तो फाइलम पॉरीफेरा का जर्म लेयर कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक. नेक्स्ट वन, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट और जर्म लेयर कैसा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक. कोई भी एक एग्जाम्पल फाइलम का नाम दे सकता है, दैट इज़ व्हाट? प्लैटीहेलमिन्थस. नेक्स्ट, बॉडी कैविटी इज सूडोकोलम और फाइलम क्या दिया है? एस्केलमिन्थस, और उसका जर्म लेयर कैसा रहता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक. नेक्स्ट वन, बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट और फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा का जर्म लेयर कैसा रहता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज ऑल्सो कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. इसमें 3 कॉलम है. टाइप, एक कोई भी एक कैरेक्टर देना और एक एग्जाम्पल देना है. तो टाइप क्या दिया है? साइक्लोस्टोमेटा, तो उसका कैरेक्टर कोई भी एक कैरेक्टर लिख सकता है. तो व्हाट हैव रिटन ओवर हियर? जॉलेस माउथ प्रोवाइडेड विद सकर. एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकता है. एग्जाम्पल क्या है? पेट्रोमाइजॉन और माइक्सिनिन. नेक्स्ट वन क्या है? गिल रेस्पिरेशन दिया है कैरेक्टर, तो टाइप कौन सा आएगा? पाइसीज, और एग्जाम्पल कौन सा है? शार्क. नेक्स्ट वन, टाइप कौन सा दिया है? एम्फीबिया, तो उस एम्फीबिया का एक कैरेक्टर लिखना है. तो एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट बट टिम्पेनम इज प्रेजेंट, और एग्जाम्पल क्या आएगा? फ्रॉग, नहीं तो टॉड. कंटिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, टाइप, कैरेक्टर और एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल दिया है वेल, तो वेल कौन सा टाइप है? मैमेलिया, और कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकता है. मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. नेक्स्ट कैरेक्टर दिया है पोइक्लोथर्मस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोइक्लोथर्मस? कोल्ड ब्लडेड, तो कोल्ड ब्लडेड का कोई भी एक टाइप और एग्जाम्पल देना है, जैसा कि पाइसिस भी लिख सकता है. यहाँ मैंने क्या लिखा है? रेप्टिलिया, और एग्जाम्पल ऑफ रेप्टिलिया क्या है? लिजार्ड, स्नेक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है स्केच, लेबल एंड क्लासीफाई. तो स्केच ड्राइंग भी करना है, डायग्राम भी बनाना है, उसे लेबल भी करना है और क्लासीफाई भी करना है. तो फर्स्ट वन हाइड्रा था, तो हाइड्रा का डायग्राम ये है, वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 67 में दिया है. और लेबलिंग क्या है? ये टेंटिकल्स है, ये टेस्टीज है, और ये माउथ है, ये बॉडी है, ये वाला जो है न्यू बर्ड है, और ये जो है ओवरी है. क्लासिफिकेशन क्या है? किंगडम एनिमेलिया, सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा, फाइलम सिलेंटरेटा. सेकेंड वन, किसका डायग्राम ड्रॉ करना है? जेली फिश, तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है, और ये डायग्राम जो है पेज नंबर 64 में दिया है टेक्स्ट बुक का, और लेबल भी करना है. तो दीज आर व्हाट? गोनाड्स, दिस इज़ बेल, दिस इज़ ट्यूब, और ये जो है वो मसल रिंग है, ये ऐसा जो धागा जैसा दिखता है वो टेंटिकल्स है. दीज आर व्हाट? ओरल आर्म्स, और यहाँ पे जो ओपनिंग है उसे कहते हैं माउथ, एंड दिस इज़ द इंटेस्टाइन. क्लासिफिकेशन क्या है? किंगडम एनिमेलिया, सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा, फाइलम सिलेंटरेटा. डायग्राम मैंने अभी बताया था, पेज नंबर 64 में है टेक्स्ट बुक में. और क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट वन, उसमें ये डायग्राम दिया है एंड यू हैव टू लेबल इट, मतलब ये डायग्राम किसका है वो लिखना है. तो दिस डायग्राम इज़ ऑफ जेली फिश, और लेबलिंग तो मैंने अभी बताया था, दैट ओनली यू हैव टू लेबल इट. तो क्वेश्चन नंबर 11 1 में डायग्राम दिया है, यू हैव टू नेम व्हाट लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज़, तो आंसर इज जेली फिश, और लेबल भी करना है. थर्ड, किसका डायग्राम ड्रॉ करना है? प्लानेरिया, और ये डायग्राम पेज नंबर 68 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 68 में है, और ये जो है आइज़ है और ये है ओरेकल.
नेक्स्ट वन उसका क्लासिफिकेशन क्या है, किंगडम एनिमेलिया, सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा और फाइलम क्या है, प्लेटीहेलमिन्थस। और क्वेश्चन नंबर 11 3 में ये डायग्राम ड्रॉ किया है, यू हैव टू लेबल इट एंड नेम इट। तो ये डायग्राम ड्रॉ करके दिया है, इसका नाम क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, प्लानेरिया लिखना है और लेबल भी करना है। फोर्थ किसका डायग्राम ड्रॉ करना है, राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म इज ऑल्सो नोन एज एस्कैरिस। ये जो है वो मेल एस्कैरिस का डायग्राम है और ये फीमेल एस्कैरिस का डायग्राम है। ये दोनों डायग्राम टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 68 में दिया है। मेल एस्कैरिस में दिस इज नोन एज द माउथ और ये एंड पार्ट इज़ नोन एज द टेल। यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग है दैट इज़ नोन एज होल। उसी तरह फीमेल एस्कैरिस में दिस पार्ट इज़ नोन एज माउथ, दिस पार्ट इज़ नोन एज टेल और एक स्मॉल ओपनिंग है उसे कहते हैं होल और एक ओपनिंग है जिसे कहते हैं जेनेटल एपेचर। क्लासिफिकेशन क्या है राउंड वॉर्म का, किंगडम एनिमेलिया, सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा, फाइलम एस्चरमिन्थस। फिफ्थ वन किसका डायग्राम ड्रॉ करना है, बटरफ्लाई का। ये बटरफ्लाई का डायग्राम टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 70 में दिया है। ये हेड है और ये एब्डोमेन है और ये विंग्स है। क्लासिफिकेशन क्या है बटरफ्लाई का, किंगडम एनिमेलिया, सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट वन सिक्स्थ वन इज व्हाट, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का ये जो डायग्राम है वो पेज नंबर 69 में दिया टेक्स्ट बुक में। ये है माउथ और ये है एनस और ये जो है वो सेगमेंट्स है एंड दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट, क्लाइटलम। क्लासिफिकेशन क्या है, किंगडम एनिमेलिया, सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा, फाइलम एनालीडा। सेवेंथ वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का डायग्राम पेज नंबर 70 में दिया है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 70 में दिया है। दिस इज साइफन, दिस इज आइज, दीज आर नोन एज टेंटिकल्स और ये जो राउंड राउंड दिख रहा है वो है सकर। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्टोपस क्या है, किंगडम एनिमेलिया, सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा, फाइलम मोलस्का। नेक्स्ट वन एट्थ, स्टारफिश ड्रॉ करना है। स्टारफिश का जो डायग्राम है वो पेज नंबर 71 में दिया है और ये उसका आर्म है एंड दिस इज़ द माउथ। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टारफिश क्या है, किंगडम एनिमेलिया, सब किंगडम नॉन कॉर्डेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। नाइन्थ किसका डायग्राम ड्रॉ करना है, शार्क का। तो ये शार्क का डायग्राम जो है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 73 में मिल जाएगा और ये जो है माउथ है, ये आइज़ है, ये लैटरल फिन है, ये डॉर्सल फिन है, ये कॉर्डल फिन है, ये वेंट्रल फिन है, ये पेल्विक फिन है, ये पेक्टोरल फिन है और ये गिल स्लिट्स है। क्लासिफिकेशन क्या रहेगा शार्क का, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा और क्लास क्या है, पाइसीज। क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ वाला डायग्राम ये दिया है, यू हैव टू नेम इट। तो ये डायग्राम क्या है, किसका है, ये शार्क का है और लेबल भी करना है। अगर नेम करने बोलेंगे तो सिर्फ शार्क लिखना है, लेबल भी करने बोलेंगे तो डायग्राम ड्रॉ करके उसे लेबल करना है। नेक्स्ट 10th वन फ्रॉग है। फ्रॉग का ये जो डायग्राम है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 73 में दिया है। ये इसका सॉफ्ट स्किन है, ये ट्रंक है, ये टिम्पैनम है, ये नर्व्स है, ये माउथ है, ये आइस है, ये फोर आर्म है और ये लेग है। क्लासिफिकेशन फ्रॉग का क्या है, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा और क्लास एम्फीबिया। 11th डायग्राम किसका ड्रॉ करना है, लिजार्ड का। ये जो डायग्राम लिजार्ड का है वो पेज नंबर 74 में है। ये टेल है, ये स्केली स्किन है और ये दोनों क्या है, लेग्स और दिस इज़ दी आइस। क्लासिफिकेशन ऑफ लिजार्ड क्या है, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा और क्लास रेप्टिलिया। नेक्स्ट 12th वन इज़ व्हाट, पीजन। पीजन का जो ये डायग्राम है वो पेज नंबर 74 में दिया है। ये बीक है, ये हेड है और ये आइज़ है और ये नेक है एंड दीज आर दी क्लॉस। क्लासिफिकेशन ऑफ पीजन क्या है, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा और क्लास क्या है, एवीज। क्वेश्चन नंबर 11 का एक रह गया था, लेबल द फॉलोइंग, दैट इज़ द सेकेंड वन। नेरिस है, ये डायग्राम किसका है, नेरिस का। तो ये डायग्राम दिया है और ये डायग्राम किसका है, नेरिस का। ये उसका टेंटिकल्स है, ये माउथ है, ये पैरापोडिया है, दैट इज़ दीज लेग्स टाइप, दैट इज़ पैरापोडिया एंड दिस इज़ दी एनस। ये डायग्राम जो है वो पेज नंबर 69 में दिया है टेक्स्ट बुक का।
एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम फ्रॉम साइंस 2 लेसन नंबर 6, वो है एनिमल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो ए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, डैश इज़ अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो ऑप्शन ए बैट दिया था, ऑप्शन बी स्नेक दिया था, ऑप्शन सी रैबिट दिया था, ऑप्शन डी एलिफेंट दिया था। तो करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन बी स्नेक। तो ब्लैंक में क्या आएगा, स्नेक। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट बी, calcareous spines are present on the body of dash, ऑप्शन ए फिश, ऑप्शन बी स्नेल, ऑप्शन सी स्पॉन्ज था और ऑप्शन डी स्टारफिश था। तो आंसर क्या था, ऑप्शन डी स्टारफिश। तो ब्लैंक में क्या आएगा, स्टारफिश। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोरिलेशन। एनालीडा का एग्जाम्पल दिया है अर्थवॉर्म, तो प्लैटीहेल्मिन्थस का भी एग्जाम्पल लिखना है। कोई भी, यहाँ मैंने लिवर फ्लूक लिखा है, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकता है, प्लानेरिया नहीं तो टेपवॉर्म भी लिख सकता है। ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू डैश, ऑप्शन ए मैमिलिया दिया था, ऑप्शन बी एम्फीबिया, ऑप्शन सी रेप्टीलिया एंड ऑप्शन डी साइक्लोस्टोमेटा। तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए, दैट इज मैमेलिया। और ब्लैंक में भी क्या आएगा, मैमेलिया। ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन, माई आउटर स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ एक्सोस्केलेटन, आई हैव 3 pairs ऑफ लेग्स टू वॉक, टेल मी टू विच फाइलम आई बिलोंग। तो आंसर क्या है, आर्थ्रोपोडा। ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, हु एम आई हैव सक्कर्स, आई एम ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट एंड माई बॉडी इज सेगमेंटेड। तो आंसर क्या है, लीच। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। सिक्स्थ क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एवीज एंड मैमेलिया। तो एवीज और मैमिलिया का डिस्टिंग्विश करना है। तो एवीज के अंडर फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, एवीज आर टोटली अडॉप्टेड फॉर द एरियल मोड ऑफ लाइफ। और मैमिलिया के अंडर क्या आएगा, मैमल्स आर अडॉप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ। सेकेंड पॉइंट, एवीज के अंडर डिजिट्स आर कवर्ड विद स्केल्स एंड बेयर क्लॉज, और मैमिलिया में क्या आएगा, डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विद नेल्स, क्लॉज और हूव्स। थर्ड पॉइंट, एवीज में क्या आएगा, एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ फेदर्स, और यहाँ पे आएगा एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर्स और फर। फोर्थ पॉइंट, एवीज का क्या है, बर्ड्स आर ओवीपेरस, दैट इज दे ले एग्स। और मैमल्स में क्या आएगा, मैमल्स आर वीवीपेरस एक्सेप्ट प्लैटिपस। तो मैमल्स जो है दे गिव बर्थ टू यंग वंस, लेकिन प्लैटिपस मैमल है मगर वो इट लेस एग्स। एग्जाम्पल्स ऑफ एवीज क्या है, डक, पैरट, पीजन एक्सेट्रा। और इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, ह्यूमन, बैट, लायन, डॉग एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स पॉइंट जैसे नहीं यूज़ करते। ये पॉइंट सब पूरा जो है वो पेज नंबर 74 में मिल जाएगा, और ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। सेवेंथ क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया, राइट एनी 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम इट। तो आंसर क्या है, द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया इज आर्थ्रोपोडा। 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम फाइलम आर्थ्रोपोडा आर। तो 2 कैरेक्टर्स लिखना है आर्थ्रोपोडा का, कोई भी 2 कैरेक्टर्स लिख सकता है। एक तो है चिटानस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड द बॉडी, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दीज एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम डीपेस्ट ओशंस टू हाईएस्ट माउंटेन। ये जो पॉइंट्स है पेज नंबर 69 में मिल जाएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आर्थ्रोपोडा का। और ये सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था 3 मार्क के लिए। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई माई क्लास ऑफ फाइलम एंड गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ इट। तो 3 क्वेश्चन पूछा है, हर एक क्वेश्चन को रीड करके उसका क्लास नहीं तो फाइलम लिखना है और एक एग्जाम्पल लिखना है। फर्स्ट वाला क्या पूछा है, आई हैव मैमरी ग्लैंड्स एंड एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, वी फॉर्म द हाइएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन द प्लानट, we have bilateral symmetry and our exoskeleton is in the form of chitin. Third question क्या पूछा है, I live in your small intestine, my body is long and thread-like and pseudo-coelomate. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, I have mammary glands and exoskeleton is in the form of hair. तो इसका कौन सा क्लास में ये बिलोंग करता है, मैमेलिया। और कोई भी एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल देना ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन।
Question B. We form the highest number of animals on the planet. We have bilateral symmetry and our exoskeleton is in the form of chitin. तो आंसर क्या है, कौन सा फाइलम से ये है, आर्थ्रोपोडा. और एग्जाम्पल क्या है, प्रॉन. कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकता है, प्रॉन, क्रैब एक्सेट्रा. नेक्स्ट सी, क्वेश्चन नंबर सी. आई लिव इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन. माई बॉडी इज लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक एंड सूडो सिलोमेट. तो आंसर क्या है इसका, फाइलम एस्केलमेंथस. और एग्जाम्पल क्या है, एस्कैरिस, नहीं तो फिलेरियल वॉर्म भी लिख सकता है. ये तीनों क्वेश्चन मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. 3 मार्क के लिए था, 3 क्वेश्चन था, हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ गिवन एनिमल्स एंड राइट 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एनिमल. फर्स्ट है कंगारू, सेकेंड है पेंगुइन, थर्ड है क्रोकोडाइल, फोर्थ है फ्रॉग और फिफ्थ वन है सी हॉर्स. तो इसमें 5 एनिमल्स का नाम दिया है, वो कौन सा क्लास में बिलोंग करता है और वो पर्टिकुलर एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक भी लिखना है. तो फर्स्ट वन इज़ व्हाट, कंगारू. ये क्लास कौन सा क्लास में, मैमेलिया. और एक कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, सो दे पोजेस मैमरी ग्लैंड्स एंड दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया था, पेंगुइन. ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है, एवीज. और 1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवीज इज व्हाट, बॉडी इज कवर्ड विथ फेदरी कोट एंड जॉस आर मॉडिफाइड इनटू बीक. थर्ड वन, क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल कौन सा क्लास में बिलोंग करता है, रेप्टिलिया. One of the characteristics of reptilia, they creep on the land as their body cannot be lifted up. Their skin is dry and scaly. Next, fourth one is what, frog. Frog belongs to which class, amphibia. They can live in water as well as on land. External ear is absent but tympanum is present. Next one, seahorse. Class Pisces. Respiration occurs with gills. They are cold-blooded aquatic animal. ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. 5 एनिमल्स दिया था जिसके बारे में हर एक एनिमल का क्लास लिखना था और एक कैरेक्टर लिखना था. और ये 5 मार्क के लिए पूछा था, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क था. क्वेश्चन नंबर 10. स्टेट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. आंसर है, बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन आर. First point, study of animals becomes convenient. Second point, it gives idea about animal evolution. Third point, study of few animals from a group helps to understand about the entire animal group. Fourth point, it helps us to understand various adaptations shown by animals. ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 62 में मिल जाएगा. और ये जो है वो मार्च 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था फॉर 2 मार्क्स. अभी लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज था उसमें से जो भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था कौन सा था वो, क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीज़न. गिव रीज़न का बी वाला क्वेश्चन जो है, अब वो बॉडी इरिटेट्स इफ़ इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जेलीफिश, ये पूछा था बोर्ड एग्ज़ाम में. और गिव रीज़न का डी वाला क्वेश्चन जो है, बेलानोग्लॉसिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. और क्वेश्चन नंबर 5, आंसर एंड ब्रीफ, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का डी वाला क्वेश्चन पूछा था, टू विच फाइलम डज कॉकरोच बिलोंग, जस्टिफाई योर आंसर विद साइंटिफिक रीज़न.